Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will continue units and measurements. I have already discussed these topics. First, what is physical quantities, then fundamental quantities, derived quantities, and after that, I have discussed physical units, system of units. Then I have already discussed significant figures, and then rounding off. Today I will discuss in this video next topic, dimension of physical quantities. Dimension of physical quantity. Listen carefully. What is dimensions of physical quantity? एक फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस है वो पावर्स होती हैं, टू विच यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर raised to represent a derived unit of that quantity. Dimensions of physical quantity क्या है? These are powers, these are exponents to which units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. और ये 7 बेस क्वांटिटीज है इसमें, और उनको हम जितनी भी हमारी बेस क्वांटिटीज है उनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, जैसे लेंथ है उसको हम ऐसे लिखेंगे, मास इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M, टाइम कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को हम कैपिटल K के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लिखेंगे कैपिटल C स्मॉल d के साथ. देन अमाउंट ऑफ substances, amount of substances इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MOL, मोल. फॉर एग्जाम्पल, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम एक्सप्रेस्ड कैसे करेंगे? एज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ. उसके लिए जो इसकी डायमेंशंस है वो ऐसे दी होगी, V इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट L इन स्क्वायर ब्रैकेट L इन स्क्वायर ब्रैकेट L, means L multiply L multiply L. This is a volume which is occupied by an object and which is expressed as product of length, and that is equal to in square bracket L power 3. As there is no mass,
and no time in volume. So dimension of volume, so dimension of volume is expressed as V is equal to m raised to power 0, L raised to power 3, T raised to power 0, MLT. Similarly, for force, similarly for force, it is product of mass and acceleration. F represent to force, mass multiply acceleration, or you can say mass multiply acceleration is equal to length divided by time whole square. The dimension of force, dimension of force, डायमेंशन ऑफ फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एफ इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन एल, लेंथ इज लेंथ रिप्रेजेंट बाय एल, टाइम रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी एंड होल स्क्वायर. And after solving all these things, it will be mlt raised to power minus 2. This is dimensions of force. Using square bracket, round a quantity means that we are dealing with dimension of quantity. Now next point is dimensional formula and dimensional equations. Dimensional formula and dimensional equations. The expression which shows how and which of fundamental quantities represent the dimension of physical quantity means डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन का मतलब है ऐसी एक्सप्रेशन जो आपको ये शो करती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे और किसको रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है. आई अगेन रिपीट, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ and which of the fundamental quantities represent the dimension of physical quantity, that is known as dimensional formula of given physical quantity. And some of dimensional formulas are given like acceleration. Acceleration is equal to, its dimensional formula is m raised to power 0, L raised to power 1, T raised to power minus 2. And mass densities का dimensional formula is equal to m L raised to power minus 3, T raised to power 0. And volume, dimensional formula of volume, that should be equal to m raised to power 0, L raised to power 3 and T raised to power 0. These are the dimensional formulas of accelerations and mass density and volume. An equation which obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula, that is known as a dimensional equation of given physical quantity. Now, first dimensional equation. Dimensional equation
of physical quantity. First is linear momentum. First is linear momentum. That should be equal to mass multiply velocity. लीनियर मोमेंटम का क्या डायमेंशनल इक्वेशन है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -1. सेकेंड, इम्पल्स. इम्पल्स किसके इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम. एंड फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -1. नेक्स्ट इज moment of inertia. Moment of inertia, that should be equal to mass multiply radius of gyration whole square 2. Whole square, that means whole power 2. And its dimensional formula will be m raised to power 1, l raised to power 2, t raised to power 0. Now, next point you should keep in mind when you solve numerical problem. First of all, you should read the problem carefully, then find out whether we have given with formula or any law to described in it. And then write the formula of physical quantity for which dimensions to be known. After that, you have to convert the formula of derived physical quantity into fundamental quantity, that is known as acceleration. And acceleration, that should be equal to acceleration is equal to velocity divided by time, or you can say length over time whole square. And then write the corresponding symbols for fundamental quantities like mass is equal to m, length is equal to l, time is equal to t. And then make proper algebraic combination and get the result. And then after that, you should be try to arrange dimensions in order m, l, t. Okay. Now I am going to discuss one question related to dimension. Question is, find out the dimensions of universal gravitational constant used in Newton's law of gravitation. हमें क्या फाइंड करना है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस फाइंड करने हैं जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूज किए गए हैं. ठीक है. तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स है, फोर्स उसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल एफ के साथ. और जो फोर्स है बिटवीन टू मासेस m1 and m2, they are separated by
separated by distance r can be given as capital F is equal to capital G multiply m1 m2 over r square. Here capital G is universal gravitational constant, and capital G is equal to capital F r square over m1 m2. Capital G is equal to Newton multiply meter whole square over kg होल स्क्वायर. मीन्स जो फोर्स है वो न्यूटन की फॉर्म में है. आर स्क्वायर दैट इज फॉर्म ऑन मीटर स्क्वायर m1 m2 kg square. After that, mass force is equal to mass multiply acceleration multiply meter the whole square over, and kg represent to mass whole square. After that, 1 over, now this mass cut with this mass, we will find only one mass. 1 over mass out, you have to write 1 over mass before outside of this bracket, and acceleration is equal to change in velocity over time, then multiply length whole square. Meter square means length whole square, and then length whole square over mass multiply time, and change in velocity means distance. Change in velocity means distance over time. Length square means capital L. Capital L square multiply capital L. Distance means L. Capital M multiply capital T, then again multiply capital T, and we will find L cube and M power minus 1 multiply, you can say, T raised to power minus 2. This is your dimension of universal gravitational constant. Question number 2. Derive the dimensional formula of physical quantities. क्या फाइंड करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास? टेंशंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट. थर्ड हमारे पास क्या है? लीनियर मास
डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। एंड फोर्थ नंबर पर हमें क्या गिवन है, इम्पल्स। अब हमने इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज फाइंड करने हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, टेंशन, और टेंशन निकालने का फॉर्मूला है फोर्स। याद करने ही है फॉर्मूले सारे आपने अच्छी तरह से। फोर्स, टेंशन किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल, और फोर्स किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सलेरेशंस, मास मल्टीप्लाई एक्सलेरेशंस। और मास किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एम को। एक्सलेरेशन किसके इक्वल है, वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस, velocity over time, or you can say change in velocity, you can say change in velocity। अभी अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एक्सलेशन किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। और कैपिटल एम मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके इक्वल है, लेंथ। और जो हमारे पास यहाँ पर टाइम है, टाइम हमने कैसे लेना है, होल स्क्वायर में। टाइम का क्या करना है, हमने होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, टाइम का टी कैपिटल, और जब इसकी डायमेंशन लिखोगे क्या लिखोगे, एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर 1, टी रेज टू पावर -2। ठीक है, ऐसे अपने इसकी टेंशन फाइंड करनी है। सेकंड हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला है, कैसे फाइंड करोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट को, इस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस। किसके इक्वल है, वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस। और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एल टी रेज टू पावर -1, और डिस्टेंस किसके इक्वल है, एल के। तो आप कैसे लिखोगे इसको, एल से एल खत्म, टी रेज टू पावर -1, दिस इज योर डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड लीनियर मास डेंसिटी। अब लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, मास ओवर लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर लेंथ। और मास किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम के। लेंथ किसके इक्वल होता है, कैपिटल एल के। तो इसको डायमेंशनल फॉर्म में कैसे लिखोगे, एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर -1। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स। हाउ टू कैलकुलेट इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। एंड फोर्स मल्टीप्लाई टाइम का फॉर्म क्या है, डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या निकाला था हमने, हाँ जी, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या था हमारा, एम एल टी रेज टू पावर -2। एंड टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी। जब दोनों को सॉल्व किया, एम एल टी -1, फाइनल आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, डायमेंशनल, जस्ट वेट, डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। बड़े ध्यान से सुननी है थ्योरी इसकी।
जो डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं वो भी टू टाइप्स के हैं, ये भी हमारे पास टू टाइप्स के हैं, और कांस्टेंट भी टू टाइप्स के। पहला जो है वो सिंपल डायमेंशनल वेरिएबल है, दूसरा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है। पहला डायमेंशनल कांस्टेंट है, दूसरा नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब डायमेंशन फिजिक्स है उसके अंदर कई वेरिएबल्स है, कई कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें से जो कुछ जो हैं उनकी डायमेंशंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डायमेंशंस के बिना है, और उनको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं फोर कैटेगरीज में। डायमेंशनल वेरिएबल्स वो कौन कौन से हैं? फिजिकल वो क्वांटिटीज जो जिनके अंदर डायमेंशंस होती हैं, जिनकी वेरिएबल्स वैल्यू होती है, उनको डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। लेंथ, वेलोसिटी, एक्सलेशन एक्सेट्रा। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, लेकिन उनमें वेरिएबल वैल्यूज होती हैं, उनको नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि ग्रेविटी, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। और डायमेंशनल कांस्टेंट किसे कहते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायमेंशंस और कांस्टेंट वैल्यू दोनों होती है उसको डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट्स एक्सेट्रा। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स में फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कांस्टेंट्स वैल्यूज तो होती हैं बट डायमेंशंस नहीं होते हैं, उनको नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्योर नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, एंड मैथमेटिकल कांस्टेंट्स जैसे पाई है, ये सारे नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। दो तरह के होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल एंड नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। जिनमें डायमेंशन और वेरिएबल्स दोनों होते हैं उसको डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं, जिनमें डायमेंशंस नहीं होते लेकिन वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट और नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स में भी क्या फर्क है? जिनमें डायमेंशन और कांस्टेंट्स वैल्यू होती है उनको डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं, जिनमें डायमेंशन नहीं होते हैं लेकिन सिर्फ कांस्टेंट्स वैल्यू होती है उनको नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करोगे और कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। व्हाट आर द डायमेंशनल एंड व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। अब ये भी थ्योरी बड़े ध्यान से सुननी है आपने कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हेल्प करती है इन deducing the relations among different physical quantities and checking the accuracy, derivation, dimensional consistency and its homogeneity of various numerical expressions। सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमारी हेल्प करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशंस है उनको डिड्यूस करने में, प्लस ये हेल्प करते हैं जो एक्यूरेसी है, डेरिवेशन है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है, होमोजेनिटी ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है, उनको चेक करने में भी डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प करती है। अब इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हम कब कहाँ यूज़ करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को? चेकिंग दी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं, जो भी इक्वेशंस हम फाइंड करते हैं या जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती हैं उन इक्वेशंस की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस को यूज किया जाता है, किया जाता है। जो मैग्नीट्यूड्स है फिजिकल क्वांटिटीज का उनको
टुगेदर ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक दूसरे में से सिर्फ कब, जब वे सेम डायमेंशंस के हों। कहने का मतलब है physical quantity, the magnitudes of the physical quantities, they may be added together or subtracted from one another only if they have same dimensions. The principle of homogeneity of dimension ये बताती है कि एक फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी अगर सभी टर्म्स की जो डायमेंशंस दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन पर सेम अक्कर करेगी। तो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन states that a physical quantity equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are same. For example, let us check the dimensional consistency of equation of motion. Equation of motion. Equation of motion is given as s is equal to ut plus 1 by 2 a t raised to power 2. अब इसके डायमेंशंस जो हैं डिफरेंट टर्म्स के वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। पहला पॉइंट हमारे पास, पहला जो हमारे पास टर्म आ रही है वो स्मॉल एस है। स्मॉल एस का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एल। एंड देन यूटी का डायमेंशन क्या होगा? एल टी रेज टू पावर माइनस 1, दैट इज यू का जो डायमेंशन है वो क्या है? एल टी माइनस 1, एल टी रेज टू पावर माइनस 1 and t represent to capital T, and this t cut with this t and we will find capital L. 1 by 2 a t square, that is equal to L t raised to power minus 2 multiply t raised to power 2, and when we solved, and this will be t square cut with the t square minus 2 cut, and we will find capital L. Now you can think that you can see that as all the terms of both sides of equations have the same dimensions, so given equation is dimensionally correct. Means आपके पास देखो सभी के आंसर क्या आ रहे हैं? कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी कैपिटल एल है, राइट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद भी रिजल्ट क्या आ रहा है? कैपिटल एल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है वो क्या है? डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। मीन्स कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं इसके लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन। in question we have given equation, just a minute. We have given 1 by 2 small m v square equal to mgh. Check whether the given equation dimensionally correct or not. First, dimension of left hand side. We have given left hand side 1 by 2 mv square and its dimension. M's dimension, that is capital M. V square's dimension LT raised to power minus
1 whole square. And when we multiply both, m l square t raised to power minus 2. And now on the right hand side we have given mgh. M, that is equal to capital M, and gravitation represent to G, and G's dimensional formula is L raised to power L T raised to power minus 2, and H represent to L. So after solving this, M L square 2 raised to power minus 2. You can see both sides are same. So that's why we can say consistency is verified. How we verify? With the help of dimensional analysis. Now, one more example I will solve here, that is related to dimensional consistency check. Now for next question, we have given de Broglie, just a minute, de Broglie wavelength lambda is equal to h over mv, and we have to find out dimensional consistency is present or not. Is it dimensional consistent or not? First we have given in this question lambda is equal to h over mb. On the left hand side we have given wavelength is a distance. That means dimension of lambda is equal to capital L. And on the right hand side we have given h over mb, and h is equal to h over mb, that is equal to h is equal to Planck's constant. Planck's constant, or m means mass and v means velocity. Now Planck's constant formula is m L square t raised to power minus 1, and mass multiply velocity means capital M multiply L t raised to power minus 1. When we solved, you can see here we find only capital L. Now you can see left hand side equal to right hand side. So that's why we can say this equation is dimensional consistent. Now second part of this question, escape velocity. Escape velocity v is equal to in square root 2 capital Gm over capital R. Left hand side v is represent to velocity, escape velocity, that should be equal to L t raised to power minus 1. On the right hand side we have given 2 Gm over R, and you can see here G 2 Gm over R, that means G is equal to M L raised to power M raised to power minus 1, L raised to power capital 3, T raised to power minus 2, and M, that is capital M, and R, that is also equal to capital R, and this square 2 square root will be
convert into power 1 by 2. Now you can write m raised to power minus 1, L raised to power 3, T raised to power minus 2, m raised to power 1 over L raised to power whole raised to power 1 by 2, and L cut with this L cube and we find L square, and when we solve it, minus 1 plus 1 that should be cut, and the remainder values r raised to power 2 and t raised to power minus 2 whole power 1 by 2. You can see here 2 multiply L raised to power 2 multiply 1 by 2 into 2 raised to power minus 2 multiply 1 by 2. When we solved it, we find that L raised to power 1, T raised to power minus 1. This is your final answer of right hand side. You can see left hand side and right hand side both are equal. So that's why we can say that equation is dimensionally correct. Now, second part of dimensional analysis. Second point, conversion of units from one system into another. अब ध्यान से इसकी थ्योरी को समझना है आपने. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपने यूनिट्स की कन्वर्जन करनी है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. आपको पता है कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ यूनिट के, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो हमेशा सेम रहता है, चाहे सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट कोई भी हो. इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर n1 गिवन है, n1 u1 है, वो इक्वल टू n2 u2 होगा. दूसरी साइड पर अगर मैं ये लिख दूं n2 इज इक्वल टू n1 u1 ओवर u2, तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन बन गई. यहाँ पर u1 और u2 बोथ आर द टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज. What are the u1 and u2? Both are the two units of measurements. किसके? quantities के. और n1 n2 these are the numerical values. माइंड में रखना है. n1 n2 क्या है? numerical values. u1 u2 क्या है? two units of measurements है. ठीक है. now अब एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं. अगर आपके पास क्या है, इफ m1 l1 and t1, m1 l1 t1 these are the fundamental unit mass. क्या है ये? are fundamental units of mass, length and time in one system. एक सिस्टम के अंदर और दूसरे सिस्टम में m2 l2 and t2 are fundamental units of mass, length and time in another system. Now तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर u1
किसके इक्वल हुआ, m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c, और u2 किसके इक्वल हुआ, m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b, t2 रेज टू पावर c, और n2 कैसे निकलेगा, u1 n1 मल्टीप्लाई u1 ओवर u2, ये हमारी इक्वेशन थी। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा, n1 m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c ओवर m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, n2 इज इक्वल टू n1 m1 ओवर m2 पावर a, l1 ओवर l2 पावर b, t1 ओवर t2 पावर c। तो ऐसे आप इनको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन है, ए कैलोरी इज a unit of heat or energy and it equals 4.2 J. About 4.2 J, where 1 J is equal to 1 kg m raised to power 2 by its s square. Suppose we employ a system of units. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg, the unit of length is beta, the unit of time is gamma. Show that a calorie has a magnitude 4.2 alpha raised to power -1, beta raised to power -2, gamma raised to power 2 in terms of new units. We have to prove it. क्या था क्वेश्चन, एक आपके पास कैलोरी है जो कि जिसमें यूनिट ऑफ हीट, एनर्जी और इसके इक्वल अबाउट 4.2 जे दी हुई है, जहां पर A1 जे जो है 1 kg m स्क्वेयर ओवर s स्क्वेयर गिवन है आपके पास। और सपोज हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है जिसके अंदर यूनिट ऑफ मास अल्फा केजी के इक्वल है, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा के इक्वल है, यूनिट ऑफ टाइम गामा के इक्वल है।
हमें ये पता करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 4.2 अल्फा रेज टू पावर -1 बीटा रेज टू पावर -2 अल्फा एंड गामा रेज टू पावर 2 जो है वो इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट है या नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे डायमेंशनल एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। क्या था फॉर्मूला? कैपिटल एम एल स्क्वेयर टी रेज टू पावर -2। अब इसमें m1 एल आपको पता ही है, m1 l1 t1 एल m2 l2 t2, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ टाइम इन गिवन टू सिस्टम्स। हमारे पास m1 इज इक्वल टू 1 kg, and m2 that is equal to अल्फा kg। m1 आपका ओल्ड हुआ, m2 आपका न्यू हो गया, और l1 1 m, l2 बीटा m, t1 1 s 1 सेकेंड, t2 गामा सेकेंड। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है इट्स के मैग्नीट्यूड का एंड यूनिट्स का वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी द प्रोडक्ट ऑफ magnitude and units is always constant। क्या फॉर्मूला था? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और n2 किसके इक्वल था? n1 u1 ओवर u2। तो यहाँ पर हमारे पास n1 गिवन है 4.2 एंड u1 का फॉर्मूला, u1 ओवर u2 का फॉर्मूला क्या था? m1 l2 स्क्वेयर t1 रेज टू पावर -2 ओवर m2 l2 t2 पावर 2 -2। एंड नाउ अब इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। 4.2 m1 ओवर m2, फिर क्या आएगा? l1 ओवर l2, फिर क्या आएगा? बीच में मल्टीप्लाई के साइन, t1 ओवर t2। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 4.2 m1 1 के इक्वल था, m2 अल्फा के इक्वल था, अल्फा और साथ में kg लिखा हुआ था, और l1 आपके 1 के इक्वल था और ये बीटा m लिखा हुआ था होल स्क्वेयर। यहाँ पर 1 नीचे क्या आएगा? गामा s, इसका होल पावर -2। नाउ 4.2 इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? अल्फा ऊपर जाएगा तो माइनस पावर बन जाएगी, ये आएगा हमारे पास अल्फा -1 बीटा -2, और उसके बाद क्या लिखोगे? गामा, क्या आएगा यहाँ पर? गामा, और इसकी पावर प्लस में क्या हो जाएगी? प्लस में। तो ये आपके पास क्या आ गया? न्यू यूनिट। नाउ यू कैन चेक what will be given in 1 calorie has magnitude that is given 4.2 alpha raised to power -1 beta raised to power -2 and gamma raised to power 2 unit, and this is proved. Now one more question.
find out the value of find out the value of 60J per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base units. हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ 60J पर मिनट ऑन ए सिस्टम, जिसके अंदर आपके पास 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट जो है एज बेस यूनिट दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? पहले तो फाइंड करोगे, पहले तो आप क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू 60J ओवर 1 मिनट। जब इसको सॉल्व करोगे 60J 1 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया, इसको इसके साथ कट किया तो बच क्या गया? 1 वॉट। W इज SI यूनिट ऑफ पावर। P इज ए पावर। आफ्टर दैट डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का क्या था? ML रेज टू पावर 2 T रेज टू पावर -3। डायमेंशनल फॉर्मूला of power is M L raised to power 2 T raised to power -3. A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to -3। जो पावर्स गिवन है उनको ABC की फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब N1 क्या है? वो किसके इक्वल गिवन है? 1 के इक्वल है। N2 हमें फाइंड करना है। एक सिस्टम का गिवन है, एक सिस्टम का फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास M1 जो गिवन है वो 1 kg दिया हुआ है। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है। M2 जो है वो हमें 100 ग्राम दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट L1 जो हमें दिया हुआ है 1 मिनट 1 M दिया हुआ है, मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। और L2 जो है वो किसके इक्वल हुआ? 100 सेंटीमीटर के। और दूसरी साइड पर T1 1 सेकेंड दिया हुआ है। T2 जो है हमें 1 मिनट दिया हुआ है, किसके इक्वल है? 60 सेकेंड्स के इक्वल है। अब हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। N2 इज इक्वल टू N1 क्या था हमारे पास? M1 ओवर M2। दूसरा क्या है था? L1 ओवर L2 मल्टीप्लाई। तीसरा क्या था? T1 ओवर T2। ठीक है। अब इनकी पावर्स में हमें A इसकी पावर 1 थी, B की पावर क्या किसके इक्वल है? 2 के। C किसके इक्वल था? -3 के। तो यहाँ पर N1 क्या है? 1 है। और M1 जो वैल्यूज हमने लिखी थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है। L1 हमारे पास 100, L2 भी 100 है और T1 हमारे पास 1 है, T2 60 है। जब इनको सॉल्व किया यहाँ पर आ गया 10, 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ये कट के 1 आया तो यहाँ 1 रेज टू पावर 2 1 है। 1 ओवर 60 है तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 ओवर 60 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ओवर 216 और 3 टाइम जीरोज इसके साथ आ जाएगी। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू पावर सॉल्व करते हैं।
लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये इसकी पावर माइनस जो था वो ख़त्म हो जाना था। जस्ट ए मिनट, अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस को ख़त्म करने के लिए ये 60 बन गया, 60 की पावर 3 हो गया, 216 था, साथ में 3 ज़ीरो। और मुझे अगर ऐसा ही यूनिट की फॉर्म में लिखना है तो 2.16 लिखूँगी। वन कितनी ज़ीरो मेरे पास, 1 2 3 4 और 5 6, तो ये आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो हम क्या लिखेंगे आगे कि जो 60 जूल था मिनट पावर -1 इक्वल टू 2.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, इसके न्यू यूनिट्स होंगे पावर के, यूनिट्स ऑफ पावर। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट जो था डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। नाउ लास्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशन, डिड्यूसिंग, दिस इज थर्ड पॉइंट, रिलेशन among the physical quantities। अब इसकी थ्योरी ध्यान से समझनी है आपने। जो डायमेंशन मेथड है डायमेंशंस का, उसको यूज किया जाता है डिड्यूस करने के लिए रिलेशंस को फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। अब ये डिड्यूस का मतलब क्या हुआ, क्या होता है डिड्यूस, डिड्यूस का मतलब कंक्लूड करना, फाइंड करना रिलेशन, कोई कंक्लूजन निकालना एक तरह से। डिड्यूस मीन्स कंक्लूजन। जो मेथड ऑफ डायमेंशन है, इट इज यूज टू conclude the relation among physical quantities, and we should know the dependence of physical quantities on other quantities। भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, वो कौन कौन सी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेड है, वो हमें पता होने चाहिए। एंड उसी के साथ हम डिड्यूस कर सकते हैं रिलेशंस को अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम गिवन है, सॉरी, ए सिंपल पेंडुलम जिसके अंदर विच हैविंग ए बोव अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग एंड दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज जो टाइम पीरियड है वो टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसको वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ के ऊपर और मास ऑफ बोब के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो इसका जो टाइम पीरियड फाइंड होगा ऑसिलेशंस का, हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे यहाँ पर t इजिकल टू के स्मॉल m रेज टू पावर a, स्मॉल l रेज टू पावर b, स्मॉल g रेज टू पावर c। तो ये क्या है हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी सी दिया है वो अननोन पावर्स है, हमें पता ही नहीं है पावर्स क्या है। स्मॉल के जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ कंसीडर करेंगे दोनों साइड्स को इन टर्म्स ऑफ एम एल टी। तो टी किसके इक्वल होता है एम एल टी की फॉर्म में, एम एल टी, एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 0 और टी रेज टू पावर 1। अब के जो राइट साइड पर है के, हम इसमें एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर जो बी है, इसको हम अलग से लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, और फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ग्रेविटी का क्या था, एल टी रेज टू पावर -2 रेज होल पावर सी।
नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लो, m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c एंड t रेज टू पावर -2c। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट और राइट साइड का डायमेंशंस आ रहे हैं। जब हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को, तो हमारे पास a क्या है 0 और b हमारे पास क्या आ रहा है b हमारे पास, हम कुछ नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को जब इम्प्लीमेंट किया तो उस केस में a इक्वल टू 0 है और -2c इज इक्वल टू 1 लिया है और c इज इक्वल टू यहाँ पर 1/-2 आ जाएगा और b वाले केस में b प्लस c जो है वो उसको 0 के इक्वल रखा तो ये आएगा b इज इक्वल टू -c और c किसके इक्वल हमारे पास b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप लिखोगे कि सब व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 थी स्मॉल के m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, g रेज टू पावर c, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आपने इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा k m रेज टू पावर a क्या 0 और l रेज टू पावर b क्या आया 1/2, c क्या आया हमारे पास -1/2 और फिर हमने इसको कैसे लिखना है, t इज इक्वल टू के इन स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ये तो 1 हो गया पूरा, यहाँ पर रह गया l ओवर जी नीचे ले गए तो स्क्वायर रूट माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, t निकल आया। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन concluding relations among interdependent physical quantities. So it can only test the dimensional validity but not exact relationship between the physical quantities in any given equation. तो इसमें ये हमें पता लगता है कि जो डायमेंशनल वैलिडिटी है उसको टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स को हम नहीं फाइंड कर सकते किसी भी गिवन इक्वेशंस में। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको एग्जैक्टली नहीं फाइंड किया जा सकता। अब एक क्वेश्चंस हम करते हैं इसके रिलेटेड। क्वेश्चन, इफ a velocity of sound v in a gas depends on its elasticity capital E and डेंसिटी को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है एंड डिराइव द रिलेशन फॉर द velocity of sound in a medium by the method of dimensions। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्या बताया इस क्वेश्चन में कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड v एक गैस में डिपेंड करती है उसकी इलास्टिसिटी और उसकी डेंसिटी के ऊपर, वो कितना डिराइव करेगी रिलेशंस फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मीडियम बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो ये हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, वेलोसिटी represented by v that is proportionate elasticity whole square।
sorry, whole power A, and density power B. That means V is equal to capital K, capital E raised to power A, capital P raised to power B. And next is, here capital K is a dimensionless proportionality constant. K क्या है? Dimensionless proportionality constant है. ठीक है, तो अब हम दोनों साइडों के क्या लिखेंगे? डायमेंशंस लिखेंगे. तो v का डायमेंशन आएगा m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -1. और कैपिटल जो k है एज इट लिखेंगे. ई इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या है? m l रेज टू पावर -1, t रेज टू पावर -2 होल पावर a. एंड डेंसिटी का जो डायमेंशन गिवन है वो m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर -3 एंड होल पावर b. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? k m पावर a प्लस b, l माइनस a -3b, t -2a. ओके, अब जब हम कंपेयर करते हैं पावर्स को किसकी? एम एल टी की, तो हमारे पास आएगा a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -b, -a -3 दैट इज इक्वल टू 0, एंड माइनस t जो -2a है दैट इज इक्वल टू 1, -1 कट -1, a is equal to 1/2. Now you can substitute here minus a is 1/2 minus 3b, that should be equal to 0, and minus 3b equal to 1/2, minus 3b equal to minus plus 1/2, and 1/2 multiply 1 by minus 1/3. 1 by minus 6 is the answer of just a minute, I will check again. I have find out a is equal to 1/2. Okay, and here you can find b, like b is equal to minus a, and a is 1/2. Now you can see a and b both are finding out. When we substitute, we have already find out a is 1/2 and b is equal to minus 1/2. Now first equation will be capital K, capital E raised to power 1/2, and T density raised to power minus 1/2, and this is your final answer. K cannot be found dimensionally and it can be found experimentally. Okay, now next and last question of this today's video. Question: the frequency V of vibration of stretched string depends upon number 1 its length, number 2
its mass per unit length m, and third, the tension T in the string. And we have to obtain dimensional and expression for frequency V. Now first, let us take the frequency of वाइब्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लेनी है एक स्ट्रिंग की जो गिवन है, गिवन बाय दिस v इज इक्वल टू k l रेज टू पावर a m रेज टू पावर b t रेज टू पावर c. एंड के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. और v का डायमेंशन क्या है, t रेज टू पावर -1. और बाकी फोर्स है हमारे पास. फोर्स किसके इक्वल होता है, m l t रेज टू पावर -2 के इक्वल होता है. एंड m किसके इक्वल होता है, मास ओवर लेंथ के इक्वल होता है. और मास ओवर लेंथ का डायमेंशन क्या गिवन है, कैपिटल M L रेज टू पावर -1 है. जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इनमें हमने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, t रेज टू पावर -1, दिस इज रिप्रेजेंट टू v, एंड L रिप्रेजेंट टू कैपिटल L होल पावर a. और नेक्स्ट m रेज इक्वल टू m कैपिटल L रेज टू पावर -1 होल पावर b. एंड नेक्स्ट t इज इक्वल टू m l t रेज टू पावर -2 होल पावर c. when we solved this equation, we will find L raised to power a plus a minus b, and m raised to power b plus c, and L raised to power a minus b plus c, and m raised to power b plus c, and t raised to power -2c. Now write in sequence m raised to power b plus c, L raised to power a minus b plus c, t raised to power -2c. And when we comparing, we will find b plus c equal to 0, and a minus b plus c equal to 0, and -2c is equal to 2c is equal to -1. Time can never 0. -1 माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ रह गया 1/2. नाउ सब्स्टिट्यूट 1/2 हियर, एंड यू विल फाइंड b's value, that should be equal to -1/2. and when we substitute here, minus minus plus 1/2 plus 1/2, and it will be equal to -1. You can see we will get the a is equal to -1, b is equal to -1/2, and c is equal to 1/2. When we substitute in first equation, we will find k is equal to L raised to power -1, m raised to power -1/2, t raised to power 1/2, and k is equal to k over L, and in square bracket t over m. This is your final answer. Now last some points you should keep in mind. There are some limitations of dimensional analysis you should be keep in mind. First limitation is it does not give any information whether this physical quantity is a scalar or vector. ये जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है वो स्केलर है, क्वांटिटी हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता. डिमेंशनलेस कांस्टेंट्स की फॉर्मूला के अंदर
जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू पाई एम. वी कैन नॉट ड्राइव फॉर्मूला विच कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच हैव नो डायमेंशन. इनके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये हमें नहीं बता सकता कि इसके फॉर्मूले के साथ हम नहीं सॉल्व कर सकते इनको. अगर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के ऊपर तो सेम डायमेंशन, उसके सेम डायमेंशन है तो रिलेशन जो इनके बीच में ऑब्टेन किया नहीं जा सकता. ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए. क्या क्या पॉइंट हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं. फर्स्ट हमने डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया, फिर डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया. आपको ये भी बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस की कौन कौन सी एप्लीकेशन किस कहाँ पर कैसे यूज़ की जाती है. फर्स्ट हमने चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन को डिस्कस किया. देन हमने conversion of units from one system to another system डिस्कस किया. देन डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया. एंड एट द एंड वी डिस्कस लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends.